So today we are going to start about line coding, and then we'll also see the concept of power spectral density, right? So first we have to understand what is the line code, and then we have to see what is power spectral density, and at the last we have to derive the power spectral density for different line coding schemes. So we'll have three main objectives with us, which we will understand in coming 2-3 lectures. Okay. So if we talk about what we have to learn, we have to see what is the line coding, then what is the power spectral density, and then we have to apply or we have to analysis the power spectral density of different line codes, right? Transmitter block diagram, when we have seen the introduction of digital communication. So in that block diagram, we have seen that first we will have the input data with us, and then we have, if we are considering that already we have converted the data from analog to digital, right? So you can say that here we are having digital input. Digital input means we will have the data in terms of 1010 kind of bits, right? And then we have seen that after getting this digital input, we apply this digital input to source encoder. Perhaps you remember, we have applied it to source encoding, right? And what was the objective of source encoder? The objective was reduces the yes, to reduce the redundancy. This was the objective when we are using source encoding. And after source encoding, we have applied a channel encoding, right? We have applied a channel encoding. And what was the objective to apply channel encoding? So it will increase the redundancy. Yes, to increase Redundancy. yes, इस लाइन को थोड़ा सा और अच्छा रेक्टिफाई कर लो, to increase the structured redundancy, right? हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी redundancy reduce की उतनी ही नहीं बढ़ा देनी है, तो फिर कोई फायदा नहीं है. To increase structured redundancy, right? पूरा लिखता हूँ मैं यहाँ. To increase structured redundancy means we have to manage that ultimately we are increasing the redundancy just to compensate the noise effect, right? Here we are increasing the reducing the redundancy. Why? Because we have to compensate the storage at the site of receiver. So the objective of both the schemes are different. Now, if we talking about beyond this block, right? After channel encoding, again we are getting some bits, right? Because here we are having bits. After source encoding, again we are getting few bits, and after channel encoding, again we are getting few bits, right? So ultimately, if you're talking about the output of the channel encoder, it means that it will also give us some data like this. Now, after channel encoding, you have to transmit this data through the channel. This is our objective. We have to transmit this data through the channel, right? So now here the concept of line coding arises, that it is not possible that 1010 these bits can travel into the channel. So what we have to do? We have to provide them some physical signals, so that those physical signals can travel into the channel, and they should carry these bits, right? So ultimately, if we are having these bits with us, it is the output of channel encoder. Then if you are providing these bits to a pulse, or in other words, waveform, right? To a pulse, it means we are providing a pulse or waveform to each and every bit. And these waveform and pulses will travel throughout the channel, and they will carry the information which is in terms of 1010, right? Because we know that 1010 cannot travel into the channel.
So it is a special type of coding which is basically which is providing the physical representation of your bits, right? Physical representation, physical signal. अभी तक की जो डिस्कशन है उसमें हमने ये सब जो कुछ भी किया वो 1010 के फॉर्म में किया, मतलब अपने डेटा को हमने नंबर्स में एक तरीके से बना लिया है, बट वो नंबर ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रैवल करेगा हमेशा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल पल्सेस. So we have to generate electrical pulses or electrical signal according to the message, digital message. So this way, this process is known as line coding. अगर मैं जनरल बात बोलूं, कोई भी कोड हो दुनिया का, उस कोड का एक जनरल मतलब क्या होता है? कोडिंग मीन्स द मॉडिफिकेशन, कोडिंग मीन्स द चेंज, राइट? एंड चेंज फॉर व्हाट? चेंज टू रिसीव सम ऑब्जेक्टिव्स, चेंज टू रिसीव सम एडवांटेजेस, राइट? इसलिए हम लोग कोड करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कोई डेटा, कोई लेटर में आपको कुछ लिखा हुआ है, इसको आप किसी दूसरे व्यक्ति को बताना चाहते हो, तो आपका पर्पज है कि सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होनी चाहिए, मेरा जो कुछ मैंने लिखा है किसी और को पता नहीं लगे. तो आप क्या करोगे? उस लिखे हुए को कुछ चेंज कर दोगे और उसको या जो भी उसको सुनना चाहता है उसको भेज दोगे, और साथ में उसको तरीका भी बता दोगे कि डिकोड ऐसे कर लेना इसको, है ना, जो लिखा है मैंने उसको ऐसे डिकोड कर लेना. तो ऐसे क्या होगा? रास्ते में वो लेटर किसी के भी हाथ में आएगा, लेकिन वो पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि वो कोडेड भाषा में कुछ लिखा होगा. सो कोड मतलब क्या है? कोड का मतलब है आपने कुछ चेंजेस प्रोड्यूस किए अपने सिग्नल के अंदर, इधर उसकी फॉर्म चेंज, उसका तरीका चेंज किया, लिखने का कुछ भी किया, तो सब कुछ कोड है, राइट? आपने देखा सोर्स इनकोडर में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग था, चैनल इनकोडर में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग था. अब लाइन कोडिंग में हमारा ऑब्जेक्टिव अलग है. लाइन कोडिंग में हम क्या कर रहे हैं? डेटा को एक पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, पल्स प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड the method है, write down the digital output of a source encoder. अच्छा, फिर से लिखें, the digital output of लाइन खींच दे रहा हूं मैं यहां पर, of source ऑब्लिक लिख दे रहा हूं, सोर्स ऑब्लिक चैनल इनकोडर, राइट? ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा कोई गारंटी नहीं कि हम कभी चैनल इनकोडर लगाएं, हो सकता है हम कभी चैनल इनकोडर का इस्तेमाल ना करें, हमको कोई रिडंडेंसी ऐड करने की जरूरत महसूस ना हो. इट डिपेंड्स ऑन द एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कि आप कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, राइट? सो द डिजिटल आउटपुट ऑफ सोर्स ऑब्लिक चैनल इनकोडर is converted into electric pulses ऑब्लिक, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं, वेव फॉर्म्स, इसको हम लोग वेव फॉर्म्स बोलते हैं, into electric pulses or wave forms for the purpose of transmission over the channel, This process is known as line coding, right? So the digital output of source oblique channel encoder is converted into electrical pulses or waveforms for the purpose of transmission over the channel. This process is known as line coding. So what is line coding? Line coding means you are providing the electrical pulses or waveforms to your digital signal 1010. So we have seen that what is the line coding, और इसका हम लोगों ने इम्पोर्टेंस भी देख लिया कि जो लाइन कोडिंग है इट इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम चैनल कोडिंग. कई बार चैनल कोडिंग और लाइन कोडिंग को लोग मिक्स कर देते हैं. तो चैनल कोडिंग जो है इट इज बेसिकली टू प्रोवाइड टू इंक्रीज द स्ट्रक्चर्ड रिडंडेंसी एंड द आउटपुट ऑफ चैनल इनकोडिंग इज फर्दर लाइन कोडेड. अब लाइन कोडिंग के बाद जो मिलेगा आपको आउटपुट पर वो अब सिग्नल होगा, एक पीटी पल्स के फॉर्म में, है ना.
वो 1 के लिए अलग पल्स होगी, 0 के लिए अलग पल्स होगी, और वो एक एनालॉग टाइप का सिग्नल मिलेगा। अब इस सिग्नल को फर्दर हम लोग मॉड्यूलेट कर सकते हैं, या जो कुछ भी करना है आपको आप करिए ट्रांसमिशन से पहले, है ना। मॉड्यूलेशन भी तो एक प्रोसेस है, जिसको हम लोग AM PM FM की तरह पढ़ते थे एनालॉग में, वैसे यहाँ पर होता है ASK PSK FSK, ठीक है, उसको मॉड्यूलेट कर सकते हैं। फिर अभी ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लाइन कोडिंग में ये तो पढ़ लिया कि साहब पल्स PT हम दे देंगे किसी बिट को, लेकिन ये पल्स PT कौन सी पल्स PT हो सकती है, इसका पल्स शेप क्या होगा। सो जो अगला टॉपिक होगा हमारा डिस्कशन का होगा आफ्टर दिस लाइन कोडिंग, वो होगा पल्स शेपिंग। यानी अब हमें आज तक ये सीख लिया है कि पहले डिजिटल डेटा लिया, उसको सोर्स इनकोडर में डाला, उसमें रिडंडेंसी रिड्यूस कर ली, फिर चैनल इनकोडर में डाला, उसमें थोड़ी सी रिडंडेंसी इंक्रीज कर ली, फिर हमने इसको लाइन कोडिंग में डाला, तो लाइन कोडिंग से हमें आउटपुट में वेव फॉर्म्स मिल गए। अब इन वेव फॉर्म्स में हम ये स्टडी कर लेंगे कौन से वाले वेव फॉर्म अच्छे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पल्स शेपिंग। और इसके बाद फिर हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे इस डेटा को डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम्स लगाकर, ASK PSK FSK लगाकर, और फिर ट्रांसमिट कर देंगे। ये पूरा ट्रांसमीटर ब्लॉक आपका तैयार हो जाएगा। तो ये सब कुछ हमें इसमें धीरे धीरे करके देखना है, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग कहां पर हैं, अभी के लिए हम लोग लाइन कोडिंग पर आए हैं। लाइन कोडिंग जहां पर हम लोग अपने डेटा को, इनपुट बिट्स को हम लोग पल्स देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और उसके अलग अलग मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी हम लोग देखेंगे, और क्या फायदा है, या पल्स जो हमें देना है उसके क्या मेन पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, वो दोनों चीजें हम लोग आज देख लेंगे। सो अब हम लोग एक छोटा सा स्लाइड ये है, इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के जो लाइन कोड्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे कि बात हुई कि लाइन कोडिंग का मतलब क्या है, लाइन कोडिंग का मतलब है पल्स देना, ठीक है। अब मान लीजिए, उसको मैं यहां लिखता हूं, जो डेटा था वो कुछ ऐसे था, ठीक है। अब इसको पल्स देने का मतलब क्या हुआ, इसको पल्स देने का मतलब हुआ, एक मिनट, हेलो, नमस्कार सिंह साहब, मैं क्लास ले रहा था इस समय, क्या मैं आपको 15-20 मिनट कॉल कर लूं, मैं क्लास में था इस समय। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 10101 ये डेटा है, तो इसको मुझे क्या प्रोवाइड कराने हैं, पल्सेस प्रोवाइड कराने हैं, PT, है ना। अब वो 1 के लिए क्या होगा, 0 के लिए क्या होगा, ये हमें देखना है। बट जो ऑब्जेक्टिव है लाइन कोडिंग का वो ये है कि हमारे पास कोई पल्स होगी PT, वो हमें देनी है इस 1 को, यानी 1 की जगह अब ये पल्स के फॉर्म में हमारे पास सिग्नल आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग लाइन कोडिंग बोलते हैं। अब ये कितने टाइप के हो सकते हैं, तो पॉपुलर ये हमारे पास 3 टाइप के हो सकते हैं, फॉर्मेट्स इनको बोलते हैं। एक तो हमारे पास पोलर स्कीम्स हो सकती हैं, पोलर लाइन कोड जिसको बोलते हैं हम लोग, पोलर लाइन कोड। और एक हो सकता है हमारे पास बाइपोलर लाइन कोड। अभी आप दोनों ही समझो, हमारे पास 2 टाइप के लाइन कोड्स हो सकते हैं, पोलर लाइन कोड और एक बाइपोलर लाइन कोड। अब जो पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से सुनना एक एक वर्ड का, अब जो पॉसिबिलिटीज हैं कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि हम पल्स PT को 1 को दें, बिट को प्रोवाइड करें, ठीक है। मतलब या कहें कि वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू वो जो बिट्स हमारे पास हैं इनको मैं पल्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। जो हाई लेवल लो लेवल था, जो जैसे आप वेवफॉर्म कह रहे थे, उसको मैं अभी बिट ही मान रहा हूँ, ठीक है, वो समझने के लिए वही आसान रहेगा। बट आप मान सकते हो कि हाँ वो पुराने वेवफॉर्म को अब हम नई वेवफॉर्म दे रहे हैं। वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम नई वेवफॉर्म दे सकते हैं, अब वो हमें देखने हैं, ठीक है। तो वो तरीके 2 है मेन, नंबर एक पोलर लाइन कोड्स हो सकते हैं, मेथड है ये, और दूसरा है बाइपोलर लाइन कोड, ठीक है। इन बाइपोलर लाइन कोड और पोलर लाइन कोड को भी लिखने के जो तरीके हैं वो 2 तरीके और हैं इनके अंदर, मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से समझिए। एक होता है RZ फॉर्मेट और एक होता है NRZ फॉर्मेट, ठीक है। एक होता है RZ फॉर्मेट और एक होता है NRZ फॉर्मेट। सिमिलरली यहां पर भी एक होगा, क्या कुछ गड़बड़ है क्या, RZ फॉर्मेट और एक क्या होगा
NRZ फॉर्मेट। सो टोटल आपके पास कितने लाइन कोड्स आ गए? एक हो गया पोलर लाइन कोड विद RZ, एक हो गया पोलर लाइन कोड विद NRZ, एक हो गया बाइपोलर लाइन कोड विद RZ, और एक हो गया बाइपोलर लाइन कोड विद NRZ। तो मेनली 4 कोड आपके सामने आ गए। इसके अलावा भी बहुत सारे कोड होते हैं लाइन कोड, जिनको हम लाइन कोड्स बोलते हैं, क्योंकि लाइन कोड होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको सेटिस्फाई करना है। तो जो भी तरीका उन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम उसको ही लाइन कोड मान लेंगे, ठीक है। बट जो पॉपुलर लाइन कोड्स हैं उनमें ये कुछ नाम जो आपके सामने में ले रहा हूं वो ये है। जानवी कह रही है इन शॉर्ट सर लाइन कोडिंग डिजायर्ड वेवफॉर्म में कन्वर्ट करने का मेथड है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात है कि आप डिजायर्ड फॉर्म में ही इसको बना। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉसिबल लाइन कोड्स हैं। हाँ यस प्रशांत, वेरी गुड। मींस कोडर के बाद वोल्टेज लेवल है और लाइन कोडिंग के बाद जाने के लिए वेव फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सटीक पॉइंट पकड़ लिया, बिल्कुल सही बात। अब हम लोग देखेंगे, अच्छा एक चीज और ध्यान से समझना, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात आपके, क्योंकि आप लोगों को चैट आ रहा है उससे समझ में आ रहा है। अभी एक पॉइंट ये है कि जो पल्स पीटी है इसका शेप क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका शेप क्या होगा, इसके लिए हम लोग पूरा एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे पल्स शेपिंग, राइट। तो ये एक सेपरेट टॉपिक होगा जिसको इस लाइन कोडिंग और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे, पल्स शेपिंग। अभी के लिए हम लोग जो पल्स अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि सबसे सिंपल पल्स जो हमें पता है वो कौन सी पता है, रेक्टेंगुलर पल्स, राइट। हम रेक्टेंगुलर पल्स को अज्यूम कर रहे हैं, इसलिए कोई ये मान मत लेना कि रेक्टेंगुलर पल्स ही होगी, राइट। क्योंकि फिर आप अभी अगला क्वेश्चन होगा आपका, सर रेक्टेंगुलर पल्स भी तो ऑन और ऑफ लेवल बता रही है, तो फिर फायदा क्या रहा लाइन कोड करने का, राइट। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अलग पल्स लेंगे, बट चूंकि हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है तो अभी के लिए हम लोग रेक्टेंगुलर पल्स को एज ए एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात। तो जो भी हम लोग लाइन कोडिंग देख रहे हैं ये सब रेक्टेंगुलर पल्सेस के फॉर्म में देख रहे हैं, बट ये रेक्टेंगुलर पल्सेस प्रैक्टिकली नहीं होंगी, तब दूसरे पल्स शेप आएंगे जिनको हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स देखने के लिए हम लोग सिंपली रेक्टेंगुलर पल्सेस को अज्यूम कर ले रहे हैं। अब अगर ऐसा है तो एक स्लाइड में ये खोल रहा हूं आपके सामने, इससे हमें समझना है कि कौन कौन से पल लाइन कोड्स हैं। इसके अलावा भी है, मैंने पहले बता दिया आपको, बट स्टिल हम अभी ये 3-4 कोड जो बहुत पॉपुलर हैं वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला कोड है ऑन ऑफ आरजेड। एक एक कोड को ध्यान से देखेंगे। ऑन ऑफ आरजेड, आरजेड मतलब क्या होता है, आरजेड का मतलब होता है रिटर्न टू जीरो। आरजेड का मतलब होता है रिटर्न टू जीरो। इसका मतलब होता है कि जो भी पल्स आप दे रहे हो एक बिट को, अगली पल्स की जब बारी आएगी उससे पहले पुरानी वाली पल्स जीरो पर लौट आएगी, ये मतलब होता है रिटर्न टू जीरो का, ठीक है। जैसे ऑन ऑफ का मतलब क्या हुआ, ऑन ऑफ का मतलब सिंपल है कि जहां 1 है वहां पर मैं हाई पल्स दे दूंगा और जहां 0 है वहां 0 पल्स दे दूंगा, ऑफ। ऑन और ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑन मींस सम वोल्टेज एंड ऑफ मींस 0 वोल्टेज, राइट। सो ऑन ऑफ आरजेड से अगर मैं टाइप की पल्सेस देना चाहता हूं अपने बिट्स को, तो देखो कैसे दिया हुआ है, ये डेटा ज्यूम किया हुआ है मैंने यहाँ 1 1 1 0 0 1 0 1 1 एंड लाइकवाइज। सो मैं इस 1 को एक हाई पल्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, आप देखिए ये हाई पल्स है, ठीक है। और ये पल्स देखो, ये पल्स ऊपर गई हाई लेवल तक, और जब अगली बिट का टाइम आने वाला था उससे पहले ये पल्स लौट के कहां आई, 0 पर। फिर ये 0 तक रही, यहां तक मान लीजिए रही, फिर यहां से अगला 1 शुरू हुआ तो यहां से फिर से ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर हाई लेवल रही और फिर नीचे आ गई, ठीक है, यहां तक मान लीजिए, ठीक है। फिर अगला 1 आ गया तो फिर यहां से आई, फिर ऊपर गई, फिर यहां से फिर ये नीचे आ गई, मान लीजिए यहां तक, ठीक है। फिर देखो यहां से यहां तक 0 है तो कोई सिग्नल नहीं भेजा मैंने, यहां से यहां तक 0 है फिर कोई सिग्नल नहीं भेजा मैंने, और फिर यहां से देखो फिर 1 आ गया तो फिर 1 के लिए ऊपर गया,
फिर ऊपर रहा, फिर नीचे आया, और फिर तो ये रिटर्न टू जीरो ऑन ऑफ है, ठीक है। ये क्या है, रिटर्न टू जीरो ऑन ऑफ, राइट। एक बार बना के देखते हैं इसको, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये, मैं ऐसे करके कुछ प्लेन लाइंस बना लेता हूँ। ये इंटरवल है, ठीक है, ये इंटरवल है। मान लीजिए यहाँ मुझे 1 भेजना था, यहाँ मुझे 1 भेजना था, यहाँ मुझे 0 भेजना था, यहाँ मुझे फिर 1 भेजना था, है ना। अब मेरे को जो कोड बनाना था वो कौन सा था, ऑन ऑफ RZ, यानी कि मुझे 1 को हाई लेवल से बताना है और 0 को 0 लेवल से बताना है। लेकिन कोड का जो फॉर्मेट है वो RZ है। RZ मतलब रिटर्न टू 0। इसका मतलब जो पल्स मैं बनाऊंगा वो ऐसे बनाऊंगा कि अगर मान लीजिए पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T है, ध्यान से देखना, पूरा टाइम पीरियड कैपिटल T है, तो T/4 इधर, ये मान लीजिए पूरा कैपिटल T है, ये पूरा कितना है, कैपिटल T। मैं क्या करूंगा, ये T/4 है, यहाँ भी ये T/4 है, ठीक है। तो यहां से यहां आऊंगा नीचे और फिर ऊपर चला जाऊंगा। ये T/2 पीरियड तक 1 रखूंगा मैं इसको, और फिर नीचे ले आऊंगा, T/4 तक 0 रहेगा। ये है मेरा 1, ठीक है। ये क्या है, 1। इस तरीके से मैं इस कोडिंग को करूंगा, ठीक है, जब मुझे बात करनी होगी रिटर्न टू 0 की, ठीक है। अब मैं अगला वन मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो फिर ये अगला पीरियड क्या है, अगला T/4 तक के लिए मैं 0 रहूंगा, फिर ऊपर चला जाऊंगा 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर T/2 टाइम पीरियड तक 1 रहूंगा, और फिर नीचे आ जाऊंगा मैं, और फिर T/4 टाइम पीरियड के लिए 0 हो जाएगा, फिर ये 1 से रिप्रेजेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब मुझे 0 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब मुझे 0 रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना है, ये तो 0 रहेगा ही रहेगा यहाँ तक। अब 0 के लिए ऊपर तो जाना नहीं है, तो ये भी, ये नीचे ही 0 रहेगा, फिर ये नीचे भी 0 रहेगा, ठीक है। ये हो गया 0 लेवल। अब मुझे फिर से 1 रिप्रेजेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, T/4 तक के लिए लो लेवल रहेगा, फिर T/2 के लिए ऊपर चले जाऊंगा मैं, हाई लेवल रहेगा T/2 पीरियड के लिए, फिर ये लो लेवल रहेगा, ये मेरा अगला लेवल है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ऑन ऑफ RZ। समझ में आया या नहीं समझ में आया, चैट बॉक्स में लिख के बताओ। ओके बेटा आशीष, थैंक यू। ओके सोनिया, ठीक है, ओके, ठीक है भैया, वेरी गुड। सो इसका मतलब पहला कोड हमें समझ में आ गया कि ये हमें किस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर इसमें जो T/4 करके लिया है, तो ये फिक्स प्रोसीजर है कि हमेशा RZ होगा तो T/4 तक 0 ही रहेगा? देखो ऐसा है कि प्रोसीजर को मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ आपके सामने, ऑल्दो ये 99.99% फिक्स है, ठीक है, आपके हमारे लिए फिक्स है ये, बट फिर भी इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जब हाई लेवल आप डिजिटल कम्युनिकेशन कभी देखते हो, पढ़ते हो, तो वहां पर कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को T/4 होगा, मैं इसको छोटे का और छोटे कर सकता हूँ, T/8 कर सकता हूँ साइड में, और 1 को ज्यादा देर तक के लिए बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। मतलब लेकिन मुझे ये दिखाना है कि टाइम पीरियड T खत्म होने से पहले मेरा सिग्नल लौट के 0 तक आ गया, मुद्दा ये। सर अगर जैसे ये करा कि पहले T/2 तक तो हाई रहने दिया, फिर T/2 के बाद से फिर लो कर दिया, तो भी तो वही सेम बात रहेगी? अच्छा एक सेकंड मैं समझ गया क्या कह रहे हो तुम। आप ये कह रहे हो कि मान लीजिए एक वेव फॉर्म है ऐसे, है ना, आपने यहां तक इसको लो रखा है ना, और T/2 तक, और फिर T/2 के बाद हाई कर दिया, ये कह रहे हो आप? जी सर। नहीं, ये गड़बड़ हो गया ना इसमें। इसमें गड़बड़ ये हो गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर इसको लौट के 0 आना था, तो कैसे 0 आएगा लौट के, ये तो हाई लेवल पर टिका हुआ है यहाँ इस टाइम पे। और सर स्टार्टिंग में अगर हाई रखें और लास्ट में लो कर दें तो? नहीं, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते ना, एक सिमेट्रिसिटी तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको रिसीवर को डिकोडिंग स्कीम भी तो बतानी है। मतलब हम जी यहाँ सर। कुछ भी कर दें, लेकिन रिसीवर को भी तो बताना पड़ेगा वो डिकोड कैसे करेगा सिग्नल को, देख सिमेट्रिसिटी तो बना के रखनी है। जी सर। तो इसको मालूम है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जो ये रेक्टेंगुलर पल्स मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने, इसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स, इसको ये बोलते हैं, तभी इसको यूज किया। ये पॉपुलर तरीका है, रिसीवर को बता दूंगा मैंने हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स यूज की, वो समझ जाएगा अपने आप, ठीक है।
ओके तो सर। हम कुछ भी करेंगे तो रैंडमनेस आ जाएगी, कुछ भी करोगे तो क्या हो जाएगा, सिस्टम रैंडम हो जाएगा, और रैंडम चीजों को आप डिकोड नहीं कर सकते। हमें डिकोड भी तो करना है, रिसीवर पर जो भी कोडिंग लगाएंगे इस कोडिंग को डिकोडिंग भी करना है, तो सिमेट्रिसिटी बना के रखनी पड़ेगी, प्रोसीजर बना के रखना पड़ेगा। तो हम पॉपुलर पल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज नोन एज हाफ विड्थ रेक्टेंगुलर पल्स। जी सर, आ गया। ओके, सो वंस वी गेट रिटर्न टू जीरो, साथ ही साथ तुरंत के तुरंत एक देख लेते हैं कि नॉन रिटर्न टू जीरो अगर ऑन ऑफ होता तो वो कैसा होता। ठीक है, तो और अच्छा समझ में आ जाएगा तुरंत के तुरंत। अब देखो यहाँ, मान लीजिए ये है ऑन ऑफ, ये था आरजेड, और ये क्या है, ऑन ऑफ एनआरजेड। एनआरजेड में ये कंडीशन नहीं है कि हमें अपने लेवल को जीरो करना है। तो मान लीजिए हमने जो स्टार्टिंग इंटरवल था, स्टार्टिंग इंटरवल से ही अपने पल्स को हम ऊपर लेके गए 1 पर, और हमने पूरे टाइम पीरियड तक इसको 1 बताया। अब अगली पल्स फिर से 1 आ गई, तो हमें नीचे आने की जरूरत नहीं है, हमने कंटिन्यूअस उसको आगे बढ़ा दिया। फिर उसके बाद अगली 1 आ गई, तो हमने फिर कंटिन्यूअस उसको और आगे बढ़ा दिया। और फिर चूंकि जीरो आने वाला था, तो उसका टाइम पीरियड जहाँ खत्म हुआ वहां हम नीचे आ गए। ठीक है, फिर अगला जीरो था तो जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर अगला जीरो था तो उसको भी जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया, फिर अगला 1 था तो ऊपर चले गए। पूरे 1 के पीरियड के लिए हमने उसको 1 रखा, और जब जीरो का लेवल शुरू होने वाला था तब नीचे आए, उससे पहले नीचे नहीं है। फिर जीरो आ गया, फिर 1 आ गया, 1 आ गया। ये है नॉन रिटर्न टू जीरो। यहाँ पर वापस लौट कर जीरो लेवल पर आने की कोई कंडीशन नहीं होती है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न टू जीरो। अगर एनआरजेड की बात करें, एनआरजेड, तो इसका मतलब होता है नॉन रिटर्न टू जीरो या नॉन आरजेड, नॉन रिटर्न टू जीरो। दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर एनआरजेड स्कीम्स। फाइन। तो एक काम करते हैं, फटाफट इसको एक हम लोग ब्लैंक साइड पे बना के भी देख लेते हैं, ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहे। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ लेवल्स हैं, ये कुछ लेवल्स हैं। यहाँ मुझे 1 भेजना था, यहाँ मुझे 1 भेजना था, यहाँ मुझे 0 भेजना था, यहाँ 0 भेजना था, यहाँ 1 भेजना था। ठीक है, अब मुझे ऑन ऑफ एनआरजेड फॉर्मेट में वेवफॉर्म लेनी है, राइट। तो ऑन ऑफ एनआरजेड फॉर्मेट का क्या मतलब हुआ, ऑन ऑफ एनआरजेड फॉर्मेट का मतलब हुआ, यहाँ देखो ये 1 है ना, यहाँ से शुरू करूंगा मैं, ये गया 1, देखो इस स्टार्टिंग पे ही 1 चला गया 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1 रहा। अब देखो रिटर्न टू जीरो तो है नहीं, तो मुझे जीरो पे आना नहीं है, तो यहाँ तक मैं 1 रहा। अगला बिट देखा मैंने 1 है, तो मुझे नीचे आने की जरूरत ही नहीं है, मैं अगले कंटिन्यूअस वन को हाई लेवल से ही बता दूंगा। लेकिन अब अगला बिट जो आया वो 0 है, तो अब मुझे नीचे आना पड़ेगा, तो मैं नीचे आ जाऊंगा यहाँ। ठीक है, अब अगला लेवल क्या है, 0, 0 से 0 चले गए। फिर उसके बाद 0 आ गया, हम 0 को ऊपर लेवल को कॉन्ट पे आ गए। ठीक है, अब 1 के बाद क्या है, अगला कोई बिट नहीं है, तो कोई बात नहीं, यही छोड़ दिया। अब अगला 1 होता तो इसको आगे बढ़ा देते, अगला 0 होता तो नीचे आके फिर आगे जाते, अगर 0 होता। दिस इज कॉल्ड ऑन ऑफ एनआरजेड। आई होप समझ में आ गया होगा। बट चैट बॉक्स में हम लोग अब अगले कोड की तरफ चलते हैं। अगले कोड की तरफ चलते हैं, तो अगला कोड क्या है, पोलर, राइट। पोलर और बाइपोलर दोनों बचे हैं। अब पोलर में आरजेड भी हो सकता है और पोलर में एनआरजेड भी हो सकता है। सिमिलरली बाइपोलर में आरजेड भी हो सकता है, एनआरजेड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग बाइपोलर आरजेड ही देख रहे हैं यहाँ पर। तो 5 कोड हमारे सामने बने हुए हैं, जो बुक्स में भी आपके सामने आपको मिलेंगे बीपी लाठी में। तो मेनली वही 5 कोड देख रहे हैं। कोड्स इसके अलावा और भी बहुत पॉसिबल है, मैं पहले आपको बता के चल रहा हूँ। Now if we are talking about polar RZ, right? So polar RZ का मतलब क्या होता है, पोलर आरजेड का मतलब होता है कि 1 will be represented by pulse pt and 0 will be represented by pulse minus pt।
दिस इज द कॉन्सेप्ट, सिंपल एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। पोलर सिग्नलिंग का मतलब हुआ, पोलर लाइन कोड का मतलब हुआ कि 1 को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को -1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर उसके हम एम्पलीट्यूड को नॉर्मलाइज कर दें। अदरवाइज जनरल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि 1 को +pt पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे और 0 को -pt पल्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मैं इसको ब्लैंक स्लाइड पे बना के दिखाऊंगा। तो ये क्या है, हम लोग को बहुत ये कॉन्सेप्ट ये रहेगा। कॉन्सेप्ट ये है कि हमें 1 को pt से और 0 को -pt से रिप्रेजेंट करना है। अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फिर से हम एक बार लेवल ले लेते हैं। बहुत सारे लेवल्स हैं हमारे पास, बहुत सारे बिट्स हैं। और यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है। ये बिट्स हमें ट्रांसमिट करने थे। कोडिंग जो हमें इस्तेमाल करनी थी वो थी पोलर लाइन कोड विद आरजेड फॉर्मेट, राइट, विद आरजेड। आरजेड माने रिटर्न टू 0। तो रिटर्न टू 0 आता ही सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हाफ विड्थ पल्स ले लेते हैं, है ना, वो सबसे अच्छा तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो हाफ विड्थ पल्स ले लेंगे। तो वो क्या, उस पल्स का कॉन्सेप्ट क्या है, 1 को रिप्रेजेंट करने के क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा नीचे रखना है ऊपर, फिर t/2 टाइम पीरियड तक उसको हाई रख लेंगे और फिर उसको नीचे रख। ठीक है, ये 1 रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, अगला 1 रिप्रेजेंट करना है तो सेम, फिर ऊपर गए, हाई रखा, नीचे आ गए, ये 1 रिप्रेजेंट हो गया। अब अगला क्या रिप्रेजेंट करना है, 0। तो 0 को माइनस पल्स से रिप्रेजेंट करना है, ये नहीं माइनस। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्या बिट है, 1। तो 1 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, हाई लेवल से। दिस इज कॉल्ड पोलर, दिस इज कॉल्ड पोलर RZ line code. Polar RZ line code, where 1 is represented by pulse PT and 0 is represented by pulse minus of PT. समझ में आ गया बेटा? ओके बेटा, ओके ओके। ये जो कोड्स हम लोगों ने डिस्कस किए सारे आप बनाकर फिर आप व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, जैसे हम लोगों ने पिछले असाइनमेंट शेयर किए बिल्कुल वैसे ही। ठीक है जी सर। ओके, पोलर आरजेड समझ में आ गया है। अब हम लोग आते हैं फटाफट पोलर एनआरजेड के लिए। तो मैं इसको दोबारा नहीं बना रहा हूँ, ये मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है। तो हम लोगों को सिंपल एनआरजेड रखना है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, 1 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय +pt एंड 0 विल बी रिप्रेजेंटेड बाय -pt। बस चूंकि फॉर्मेट एनआरजेड है, इसका मतलब हमें 0 लेवल पर आने की जरूरत बार बार नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। तो आप देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर कि 111, ये 3 1 है, इनको मैंने सिंपल 3 1 को रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब जहां 0 की बारी आई, पिछली बार क्या करते थे, 0 पर यहाँ 0 पर नीचे यहाँ 0 लेवल पर आए थे, तो इस बार क्या किया, -pt पर चले गए। ठीक है, बस इट इज, दिस इज द ओनली डिफरेंस। So this is called polar NRZ. I hope you got this code. Now I am discussing this new code. This is known as bipolar RZ। यहाँ RZ बना हुआ, आप NRZ भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग RZ देखेंगे। इसी का दूसरा नाम है AMI, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। ठीक है, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। सो क्या कॉन्सेप्ट है इसका, देखो 1 will be represented by +pt और -pt, ये ध्यान से समझिएगा, and 0 will be represented by no pulse। 0 will be represented by no pulse। This is the important concept, right? तो देखो यहाँ पर 1 को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया है, अगले 1 को -pt से, फिर pt से, फिर -pt से। क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको एक बार ब्लैंक स्लाइड पे बना के देख लेते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है हमारे लिए। हम लोग एक ब्लैंक स्लाइड चुन लेते हैं और इसको हम लोग बना के देखते हैं। What is the concept in bipolar line code? 1 will be represented by either +pt or -pt, and 0 will be represented by no pulse, right? अब फिर से एक बार क्या करते हैं, लेबल बना लेते हैं।
मान लीजिए यहाँ मुझे 1 बिट थी, यहाँ 1 बिट थी, यहाँ 0 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 थी, यहाँ 0, राइट। ये कुछ ऐसा था और मुझे बनाना था बाइपोलर लाइन कोड, राइट, बाइपोलर लाइन। तो मान लेते हैं कि पहले वाले 1 को, क्योंकि ये आरजेड है तो आरजेड मतलब रिटर्न टू जीरो, रिटर्न टू जीरो का मतलब हम लोग क्या ले लें, हाफ बिट पल्स ले लेते हैं ना। हाफ बिट पल्स का मतलब तो यहाँ थोड़ा नीचे 0 रहेगा, फिर ये ऊपर जाएगा 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, और फिर ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा, और फिर ऐसे। दिस इज वन, राइट। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कोड है बाइपोलर लाइन कोड, या इसको बोलते हैं हम लोग अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, अल्टरनेट मार्क इन्वर्जन। इसका मतलब होता है अल्टरनेट, मार्क मीन साइन है ना, प्लस और माइनस, मार्क इन्वर्जन, इन्वर्जन का मतलब पलटना, ठीक है। ये अल्टरनेटिवली अपना साइन पलटता रहेगा, ठीक है। तो 1 को हम प्लस पीटी या माइनस पीटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने पहले 1 को प्लस पीटी से रिप्रेजेंट कर लिया है, तो अगला आने वाला 1 हमेशा किससे रिप्रेजेंट होगा, माइनस पीटी से रिप्रेजेंट होगा। तो इस 1 को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे माइनस पीटी से, राइट। जीरो लेवल का मतलब तो कोई कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो मतलब नो पल्स, तो जीरो ही रहेगा, ये जीरो चला गया। अब फिर 1 आया, अब इस 1 जब भी नेक्स्ट 1 आएगा तो हम हमेशा पिछले वाले 1 को देखेंगे, जीरो को नहीं देखेंगे। जीरो कितने भी आगे हो बीच में, हमेशा देखेंगे पिछले वाला 1 क्या था। पिछले वाला 1 था नेगेटिव माइनस पीटी, तो इसका मतलब ये वाला 1 क्या होगा, प्लस पीटी। ये वाला 1 क्या होगा, प्लस पीटी। अब अगले 1 पर आगे, अगला 1 क्या कह रहा है, पिछले वाले 1 को देखो, तो पिछले वाला 1 क्या था, पिछले वाला 1 था प्लस पीटी, तो इसका मतलब ये वाला 1 क्या हो जाएगा, माइनस पीटी, और देन